Hello friends, welcome to my YouTube class. Today we are going to start the next chapter and the chapter is transport in plants. So as you know that all living organisms need water, minerals and food for their survival. In the same way the plants also need food, water and minerals for their survival. You all know that the food materials are being prepared in the leaves of the plant through photosynthesis, and the water and dissolved minerals are present in the soil. So, we just have to know how these materials, that is, the dissolved minerals and the water from the soil and the synthesized food from the leaves, reaches to each and every part of the plant. तो दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो, या वाटर या डिजॉल्व मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता किस तरह से है। और आज के इस वीडियो में एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट in rooted plant, water and mineral transport in xylem is unidirectional. So this is common thing, and you all know that vascular bundles are there in the plant that helps in transportation of the food materials and the water. तो जो vascular bundles हैं, they have two tissues, xylem and phloem, xylem and phloem. तो xylem helps in transportation of water and dissolved minerals from the root to the all parts of the plant, or it's better to say that from the soil to the whole plant body with the help of xylem. And this transportation is unidirectional, means the flow of water and dissolved minerals goes in one direction, that is from root to the tip of the plant, one directional, that is unidirectional. Now the translocation of organic and inorganic nutrients, that is photosynthesized food which are present in the leaves, that is multi-directional, as it has to go towards the upper direction and towards the lower direction also. That's why it is multi-directional. And you all know that the translocation of the food is done through the phloem. The transport of material could be unidirectional or it could be bidirectional, but the important method of transport of materials are, भले ही जो ट्रांसपोर्ट का मटेरियल है वो यूनिडायरेक्शनल हो या बाई डायरेक्शनल हो, लेकिन जो मेथड्स हैं, वो जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं वो हैं डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं, दैट इज़ डिफ्यूज़न। It is a physical process in which different solvent molecules or solute ions are transported passively without the expenditure of energy. तो डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स बिना एनर्जी कंज्यूम किए अपने मटेरियल्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ स्लो प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। बिल्कुल स्लो प्रोसेस है और इसमें लिविंग सिस्टम का कोई भी फंक्शनिंग वर्क नहीं करता है। इट गोज़ ऑन ऑफ इट्स ओन, एंड दैट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल. During this process, the molecules or ions flow in a random fashion from the region of high concentration to the region of low concentration. Or the material may be gas, or it may be liquid, or it may be solid. Now, next is diffusion. तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मेनली अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो डिफ्यूज़न हम पढ़ रहे हैं वो किस किस फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है, उसमें पहला है कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बहुत ही कंसंट्रेटेड आइटम है, तो उसका डिफ्यूज़न बिल्कुल स्लो हो जाएगा। और अगर डाइल्यूट सब्सटेंस है तो उसका डिफ्यूज़न ईजी वे में होगा, फास्ट होगा। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम।
तो जो परमिएबल मेम्ब्रेन है हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के मटेरियल्स के बीच में, अगर वो हाईली परमिएबल है तो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हाईली स्पीड से जाएंगी, और अगर बहुत ही मेम्ब्रेन पास करने नहीं दे रहा है सामान को, तो जो स्पीड है डिफ्यूज़न का वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फ्लो ऑफ मटेरियल्स थ्रू डिफ्यूज़न इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे डिफ्यूज़न का भी रेट घटते जाता है। नेक्स्ट इज प्रेशर। तो प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। लास्ट वन इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का एक स्पेशल केस है, दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। Now next is facilitated diffusion. The spontaneous passage of molecules and ions across the biological membrane being facilitated by the transport or carrier proteins. तो इसको समझने के लिए डायग्राम आप देखें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपको दिख रहा है, जो आपने पढ़ा था बाइलिपिड लेयर, वही बाइलिपिड लेयर है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और बीच में आप लोग कैरियर प्रोटीन देख रहे हो, वो कैरियर प्रोटीन हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। तो द स्पॉन्टेनियस पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डू नॉट क्रिएट एनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय देमसेल्फ। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो मटेरियल्स के कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। जो भी कंसंट्रेशन मटेरियल का हो एज इट इज रहता है। अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा, और लो कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन रहेगा। उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का कोई भी रोल नहीं है। द मूवमेंट ऑफ आवर्स टू द कैरियर प्रोटीन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी एंड इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आवर्स यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। मूवमेंट ऑफ आयंस या कोई भी मटेरियल है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो जो इस फिगर में आप कैरियर प्रोटीन देख रहे हो, जो लिखा है यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी भी आयंस या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी को यूज़ किए हुए, तो वो कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो ये दूसरा मेथड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जिसके थ्रू मटेरियल्स मूवमेंट कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा डिफ्यूज़न, दूसरा हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। Now next is condition that affect the facilitated diffusion. कौन कौन से कंडीशन हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को इफेक्ट कर सकते हैं? उसमें पहला है स्मॉलर द सब्सटेंस साइज द फास्टर इट विल डिफ्यूज। सब्सटेंस साइज जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी ही डिफ्यूज करेगा। मोर द सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिक्विड मोर फास्टर इट विल डिफ्यूज। मोर द सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिक्विड मोर फास्टर इट विल डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। लिक्विड हो या फिर लिपिड हो, अगर वो सब्सटेंस सॉल्युबल है लिपिड में या लिक्विड में, तो जितना जल्दी घुल जाएगा उतना ही जल्दी डिफ्यूज़ करेगा, और जितना लेट करेगा घुलने में उतना ही लेट डिफ्यूज़न होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन बिकॉज इट विल रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। तो ये उल्टा काम नहीं करता है। ऑलवेज जो मूवमेंट है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, ताकि एनर्जी का कोई भी यूटिलाइजेशन ना हो। अदरवाइज़ अगर ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मटेरियल्स को भेजना शुरू करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, तो वहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करता है। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अभी हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, उसके टाइप्स देख लेते हैं। कैरियर प्रोटीन्स विच बाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूट टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड डिलीवर सेम टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये पहले टाइप के प्रोटीन हैं जो कि ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स को या आयंस को जिस फॉर्म में लेते हैं उसी फॉर्म में अंदर डिलीवर कर देते हैं। बाहर से जिस फॉर्म में लेके आएंगे उसी फॉर्म में अंदर डिलीवर कर देंगे। दूसरे तरीके कौन से हैं? द चैनल प्रोटीन्स विच फॉर्म चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन सो दैट द मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली गेट ट्रांसपोर्टेड। दिस इज कॉल्ड चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं चैनल्स बना देते हैं और उस चैनल्स के थ्रू मटेरियल्स मूव करना शुरू करते हैं। द लार्ज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन विच क्रिएट ह्यूज पोर्स। कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन में ह्यूज पोर्स बना देते हैं।
as for example in the outer membrane of plastid, mitochondria and bacteria, so that the molecules can cross very easily. A small protein size pores is called as porins. Porins आप लोग याद रखेंगे, porins क्या है. Now next is aquaporins. इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. aquaporins क्या होते हैं? During transportation, the extracellular molecule bind to the transport protein, which then rotate towards the intracellular matrix and release the molecules inside. तो क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक ऐसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो मॉलिक्यूल को बाइंड कर देंगे, बाइंड करने के बाद रोटेट कर जाएंगे अपने पोजीशन पे, और रोटेट करते ही बाहर का जो मटेरियल है वो अंदर चला जाएगा. तो ऐसे पोरिन्स को बोलते हैं हम लोग एक्वा पोरिन्स. और एग्जांपल है द सेल वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा पोरिन्स. एक्वा पोरिन्स आर परमेबल प्रोटीन फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. Passive transport and antipode. In relation to facilitated diffusion, some carrier or transport proteins allow the movement of molecules only if two molecules move together. This type of movement is known as co-transport. जब दो molecules एक साथ मूव करेंगे और एक ही साथ मूव करना चाहेंगे, वो अकेले मूव करना नहीं चाहेंगे, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं co-transport. Co-transport can be following types: सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट. क्या है ये भी देख लेते हैं. सिम्पोर्ट, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज सेम डायरेक्शन. तो आप यहाँ पे देखिए सिम्पोर्ट, दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, तो वहाँ पे हम कहते हैं सिम्पोर्ट. दूसरा है एंटीपोर्ट, इन दिस टाइप बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेज मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ एंटीपोर्ट का डायरेक्शन डायग्राम देख लेते हैं. एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, और दोनों मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. एक अगर अंदर आएगा सेल के तो दूसरा सेल के बाहर जाएगा. और थर्ड टाइप है यूनिपोर्ट. इन दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल. यूनिपोर्ट में जो यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है या जो आयन है वो अकेले ही चलना पसंद करता है. आइदर वो अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा, बट इट विल मूव अलोन. इट डू नॉट लाइक द अदर मॉलिक्यूल्स टू बी मूव अलॉन्ग विथ इट. वो अकेला ही घूमना चाहता है. तो दैट इज यूनिपोर्ट. तो ये तीन तरीके हो गए, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Active transport involves the expenditure of energy in the form of ATP molecules or ions against the concentration gradient. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वही हेल्प करते हैं मूवमेंट में मॉलिक्यूल्स के, फ्रॉम इन टू आउट और फ्रॉम आउट टू इनसाइड द मेम्ब्रेन. लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पर ATP का कंजप्शन होता है. और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन पे मटेरियल को भेजा जाएगा. मीन्स जहाँ मटेरियल कम है वहाँ से जहाँ मटेरियल हाई है वहाँ पे भेजेंगे, तो वहाँ पे ATP का कंजप्शन होता ही है. इट इज़ अज्यूम दैट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कैरियर प्रोटीन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो हमने बातें बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फिक्स्ड कैरियर प्रोटीन है, स्पेशल कैरियर प्रोटीन है, वही हेल्प करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में विद द कंजप्शन ऑफ एनर्जी. द कैरियर प्रोटीन यूज्ड इन दिस ट्रांसपोर्ट आर वेरी स्पेसिफिक इन कैरिंग प्रोटीन्स across the membrane in turnover method. This is active transport. Now that's all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel.